السلام علیکم رضوان صاحب، کیا حال ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو خان صاحب نے جو ایگریمنٹ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، اس میں جو پیٹرول کی پرائسز ہیں اس کو آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ اس کو بڑھانا ہے، اور لیکن عمران خان نے بڑھانے کی بجائے کم کر دی پیٹرول کی پرائس. تو یہ عمران خان صاحب نے کیوں کیا تھا ایسا؟ جی بالکل. دیکھیں ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے، عمران خان گورنمنٹ کے اندر اپنی بزنسز ڈیولپ کرنے، اپنی پراپرٹیز بنانے، اس کام کے لیے آئے ہیں. یہ تو سب کلیئر ہے اور اس پہ نہ کسی کو کوئی شک ہے، نہ ہونا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ پالیٹکس کے اندر وہ جسے کہتے ہیں دو دھائی تلوار سے جو ہے کھیلا جاتا ہے. کوشچن اس پوائنٹ کی طرف میں صرف اس لیے آؤں گا کہ دیکھیں آئی ایم ایف کی شرائط پہ آئی ایم ایف کے پروگرام پہ ہم چل رہے ہیں، ہمیں فنڈ بھی ریلیز ہو رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. چونکہ اب چیز یہ کلیئر ہو گئی تھی کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بیک آؤٹ کر رہی ہے، پیچھے ہو رہی ہے، ایک چیز کنفرم ہو گئی. کچھ چیزیں پالیٹکس کے اندر اپنے اوپوننٹس کو لیسنز دینے کے لیے جو ہے وہ اسٹیپ لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ایبسولوٹلی رانگ. آئی ایم ایف نے کہا پرائز انکریز کرنی، اس نے خان نے پرائز ڈیکریز کر دی. آبویسلی اگینسٹ جو ہے وہ اس کے پروگرام کے ہم اپوزٹ جا رہے ہیں، کیونکہ اب یہ چیز کنفرم ہو گئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ بیک آؤٹ ہو رہی ہے اور پی ایم ایل این کے ساتھ اور شہباز شریف کو آگے آنے کا پروگرام وہ اوکے ہو. اب چونکہ اپ کمنگ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے راستے کے اندر ہرڈلز کو تھوڑا اور انکریز کرنے کے لیے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، صرف اور صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اگلے 5 سال، جسٹ فار فیو ویک. یہ ایک پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، یہ ایک لیسن اورینٹیشن ہوتی ہے. یس یہ جو ہے وہ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ سبق سکھانے والی ایک طرح کی، اس کی ویسے اس طرح کی سیاست ہے تو نہیں، لیکن بہرحال اب ایک چیز بہت ڈومیننٹ ہو گئی تھی کہ گورنمنٹ جا رہی ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے. آخری بال تک کھیلنے والے جتنے بھی ایلیمنٹس تھے، اوبویسلی یہ سٹوری جو ہے وہ 2-3 ہفتے والی سٹوریز تھیں کہ آخری بال تک کھیلنا ہے. اب چونکہ اپ کمنگ گورنمنٹ جو آ رہی تھی اس کے لیے ہرڈلز پہلے بہت زیادہ تھیں، بچی ہوئی کسر اس نے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اپوزٹ جا کے جو پرائز ریڈیوس آپ نے انکریز کرنی تھی وہ ریڈیوس کر کے اور پھر مسئلے کھڑے کر دی. یہ جسٹ فار فیو ویک کا ایک لیسن اورینٹیشن تھی. ایبسولوٹلی رانگ، بالکل غلط کیا. میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں. اوپینین دینے کے لیے تو آنیسٹ رہنا، ایک جو ریئل جو گراؤنڈ بیسز ہیں، حقیقی جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہ تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بالکل ایکسیپٹ کر رہا ہوں، اس میں یہ چیز ہے. یہ صرف پولیٹیکل کیا کہتے ہیں کہ لیسن اورینٹیشن اور پوائنٹ سکورنگ کی خاطر اس نے پرائز ریڈیوس کی تاکہ جو ہے آگے آفٹر ایفیکٹس آپ کے سامنے ہی ہیں. یہ بتائیں نا کہ خان صاحب کو کیا ایسا کرنا چاہیے تھا؟ میں تو یہ توقع نہیں کرتا ان سے کہ وہ ایسا کام کرے گا جیسے باقی لوگ جو ہے وہ کرتے رہے. ایسے ہی اگر کام کرنا ہے جیسے پہلے لوگ کرتے ہیں تو پھر تبدیلی کس چڑیا کا نام ہے؟ پھر یہ سارے پہلے یہ کام کرتے رہے ہیں. اس سیاست کو گندہ جو ہے وہ کس نے کیا ہے؟ سیاست کو منافقت کس نے شامل کیا ہے؟ اس کو تو ہم لے کے آئے تھے کہ یہ تبدیل کرے گا سیاست کو. یہ سیاست کا جو ڈائمینشنز ہیں یہ ایک نیولی کوئی سیٹ کرے گا، یہ خد و خال جو ہے وہ چینج کرے گا، ایک راستہ متعین کرے گا اچھی سیاست کا. خان صاحب کے پاس ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ بیانیہ بنانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ ان کے اندر خوبی جو ہے وہ موجود ہے. اب آپ یہ بتائیں نا کہ یہ خوبی اگر کسی بندے کے اندر ہے تو اس کو سچائی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اس کو پازیٹیو راستہ اختیار کرنا ہے یا نیگیٹو راستہ اختیار کرنا ہے؟ جی بالکل، بہت اچھی آپ نے بات کی. میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں رانگ از رانگ از ایوری ون از ڈوئنگ، رائٹ از رائٹ اف نو ون از ڈوئنگ. مسئلہ اتنا ہے کہ آپ کی پراپرٹی، آپ کے بینک بیلنس، ساری چیز پہ میں نے قبضہ کر لیا. مجھے اس کے بعد بتائیں آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ نیگیٹو ایلیمنٹ لازمی آئے گا. سادے بندے کو تو کھا جاتے ہیں نا. یہ تو منجے ہوئے پرانے 30-40 سال سے جن کے ٹیگے جمے ہوئے ہیں، تو اب اتنی ایگریشن کا ایلیمنٹ ہے. دیکھیں ہمارا ٹیکس کا پیسہ، بزنسز بن گئے باہر، فیکٹریاں بن گئی، پراپرٹیز ٹریلینئرز کی ان لوگوں کی بن گئی ایز اے ریئیکشن. کیونکہ جب آپ یہ فیل کر جاتے ہیں کہ یہ عوام کا پیسہ ہے، میں نے اس چیز کو فیل کرنا ہے، میں اسی لیے گورنمنٹ کے اندر آ رہا ہوں. میرے اندر جتنا بھی میں ہو جائے ریاست مدینہ کی بالکل ٹھیک ہے، ریونج کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا، لازمی ہوگا. میرا صرف پوائنٹ اتنا ہے، اس بندے نے اگر کوئی ہارڈ سٹیپ لیے، کچھ بھی اس طرح کے نیگیٹو ایسپیکٹ بھی اپنایا، اس میں الٹیمیٹ پرپز میرا نہیں ہے دل بنی گالا کی لینڈ کو ڈبل کرنے کا. میرا سر کوئی پروگرام ہی نہیں ہے باہر جو ہے وہ جمائمہ کے ساتھ جو ہے وہ پیچ اپ کر کے اور پراپرٹی بنانے کا. تو پرسنل ایسپیکٹ جب اندر آئے گا اتنے بڑے لیول پہ، سیاست تو پرسنل ایلیمنٹ کی گندگی کا نام ہے نا. پرسنل ایلیمنٹ اندر آتے ہیں، میرا پرسنل بینیفٹ، میرا آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود پاکستان. دوسری بڑی زبردست بات ہے خان کا جو نیریٹو بلڈ کرنے کا جو سٹائل ہے وہ اس کا کوئی ثانی نہیں. اور آپ ٹھیک ہے، میں ایز اے نیوٹرل میں کسی صورت جو ہے وہ ایگری نہیں کروں گا کہ ہر بلڈ ہوا ہوا نیریٹ وہ بالکل ٹھیک ہے. فوج کے خلاف بلڈ ہوا ہوا نیریٹ بالکل رانگ از رانگ اف نو ون اف ایوری ون از ڈوئنگ. دیکھیں جو بھی نیریٹو بلڈ
होता है उसको उतनी सपोर्ट सर, वो ट्विटर की रैंकिंग टॉप पे। एक दिन ऐसा नहीं है जिस टाइम मेरे सामने है ना, ये मैंने ये ना चेक किया हो कि ट्विटर की सबसे टॉप रैंकिंग क्या चल रही है सर। आप वही आप सिर्फ टॉप 10 देख लें, उसके आप अंदर 5 या 6 आपके वही होंगे, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर और वो सारी की सारी महंगाई, वही की वही चीजें चल रही हैं। हर बिल्ड हुआ हुआ नैरेटिव ऊपर जाता है। वो रॉन्ग है, राइट है। खान की सबसे जो है वो एक वीक पॉइंट ये है कि नैरेटिव बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हो भी जाता है, लेकिन वो हर नैरेटिव को भी बिल्ड नहीं होना चाहिए। नैरेटिव की बिल्डिंग भी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, ये मैं इसी से बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन जो रॉन्ग है उस रॉन्ग चीज़ के लिए जो है वो आपको कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी देने पड़ते हैं, आपको सबक सिखाने के लिए, क्योंकि आप बैकआउट करना चाह रहे हो, उसको बैकफुट पे लेके जाना चाह रहे हो। उसी खातिर अगर आपने जो है वो कोई चक्करबाजी का कोई स्टेप ले लिया, इनको पीछे करो यार। ये 2 नंबरी अगर कर रहे हैं तो हम 2 नंबरी हम भी करके एटलीस्ट इन लोगों को जरा बैकआउट, जरा पीछे दीवार के साथ लगाने का पर्पस है। उसमें अल्टीमेट पर्पस कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, अल्टीमेट पर्पस पाकिस्तान। तो वो बिल्कुल ठीक है। मैं और दूसरी चीज़ से भी बहुत ज़्यादा मेरा पूरा 100% मैं इसमें एग्री करूँगा कि झूठ ऑब्वियसली ठीक नहीं है। झूठ की बेस पे कोई नैरेटिव बिल्ड होना भी ठीक नहीं है। तो लेकिन ये है कि उसमें अगर कोई ये बिल्ड हुआ है तो उसमें पर्सनल एलिमेंट नहीं है, उसमें अवाम है पाकिस्तान की अवाम। जहाँ तक मैं समझा हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि खान साहब का मुकाबला जो है वो ऐसे लोगों के साथ है जो बड़े मंजे हुए हैं, इसलिए रिवेंज का एलिमेंट भी आएगा उनके अंदर और इनका मुकाबला करने के लिए वो झूठ भी बोलेंगे, मुनाफकत भी करेंगे। जैसे आपने कहा कि हर नैरेटिव ऐसा नहीं होता जो बिके, और तो ये तो खान साहब को ही ख्याल करना है ना। और दूसरा ये है कि ये अगर सारा कुछ खान साहब ने करना है, ये कर रहे हैं, तो रियासत मदीना जो है वो क्या चीज़ है? अमर बिल मारूफ, वो जो बार बार नाम लेते हैं कि अच्छाई के साथ खड़े हो जाओ और अपने आप को कहते हैं कि मैं अच्छाई हूँ। वो ये तो कहता ही नहीं ना कि आप देख लें जो अच्छाई है उसके साथ जाके खड़े हो जाएं। वो तो कहते हैं मैं हूँ, मैं अच्छाई हूँ और मेरी तरफ ही आके खड़े होना है। अगर कोई जानिबदार भी है उसको तो वो मानते ही नहीं कि जानिबदार तो जैसे इलेक्शन कमीशन है उसको कहते हैं कि ये तो जानिबदार है। सबक भी यही देते हैं कि जानिबदारी का मुजाहरा करना है, लेकिन जानिबदारी वो जानिबदारी है कि मेरे साथ आके खड़े हो जाओ। तो क्यों आपके साथ खड़े हो जाएं? आप जो मुनाफिक भी हैं, आप झूठ भी बोलते हैं, इंतकाम का जज्बा भी आपके अंदर है, तो मतलब ये तो एक जो है वो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। सोशल मीडिया के ऊपर इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब की बड़ी पॉपुलैरिटी है। ये ऐसे ही है जैसे मुशर्रफ दौर में, आपको शायद याद हो, मुशर्रफ जो था वो इस बुनियाद के ऊपर इतना मुतकब्बिर था, इलेक्शन जो है वो क्लीन स्वीप करने का उसका प्रेडिक्शन थी उसकी। क्यों थी? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी उस वक्त, जब सोशल मीडिया ऐसे इतनी रीच में नहीं होता था। उस वक्त ग्राउंड रियलिटीज जो थी वो कुछ और थी, बहुत बुरी तरह पिट गया वो। खान साहब जो है वो दोबारा सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं, दोबारा कुर्सी चाहते हैं। वो उसके लिए कोई भी बात उनको करनी पड़े और उनका पता चल जाए कि अवाम जो है वो ये चीज़ ज़्यादा पिक करेगी, वो चाहे उसको अमेरिका के ख़िलाफ़ जो एलिमेंट है उसका टच दें, या वो जो ये इनको गाली देने का टच हो, या इस्लामिक टच हो, या पॉलिटिकल टच हो, उनको कहीं से कोई पता चल जाए ना कि जी ये चीज़ अवाम में मकबूल होती है और जोश पैदा होता है, हर वो बात करने के लिए तैयार है, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए कि मुझे किसी तरह वापस इक़्तिदार मुझे दिया जाए। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी देखें बात से एग्री कर रहा हूँ। देखिए, किसी स्टेटमेंट के गलत होने पे, किसी स्टेटमेंट के मिसपर्सीव होने पे इंसान सियासत तो ख़त्म नहीं कर सकता ना। इतना तो सियासत का हक सबको हासिल है। बच्चे को पता है कि जरदारी को सीट की प्यास क्यों है, नवाज लीग को कुर्सी की, इक़्तिदार की प्यास है क्यों है, इन्होंने आके क्या करना है। देखें, अगर कोई स्टेटमेंट किसी ने गलत दे दी है ना, अगर कोई खान ने स्टेटमेंट गलत दी भी है ना, हमें अल्टीमेट पर्पस पता है कि इस बंदे ने अगर इक़्तिदार में आ भी जाना ना, इसमें क्या करना है वो हमें पता है। ही हैज़ नथिंग टू डू विद हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, ही हैज़ नथिंग टू डू विद हिज पर्सनल बिजनेसेस। उसका पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ नहीं है। मरीम नवाज ने क्या कहा था, सबको पता है ना कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो कौन चोर होता है। हाँ जी, सबको पता है जी, जलसे में सबने कहा है जी, हुकूमत डायरेक्ट चोर होती है। हम ये स्टेटमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। ये देखें आपके सामने है, एक हफ्ते विद इन लेस देन 10 डेज पेट्रोल 60 रुपीज़ गया और अब 3 दिन सर आप सिर्फ और रुक जाएं, पूरा का पूरा 100 आपको करके देंगे नून लीग वाले। कितनी एविडेंट सी चीज़ है जी। हम भी जरदारी को जो है रोडों पे जो है घसीटेंगे, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है। एक स्टेटमेंट पे पूरी की पूरी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। नो नेवर, ऐसे नहीं है। सियासत का खान की भी अगर उसमें इक़्तिदार की अगर उसमें प्यास है, उसमें उसको पता है कि उसने जो है ना बिल्कुल
बिल्कुल बुनियाद है, जड़ों से चीज़ों को सीधा करने की ट्राई करनी। तो उसमें हर्डल, अब जो भी चीज़ें आती हैं ऑब्वियसली हमारे इदारे, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर लोग जो है वो सारे क्या कहते हैं कि खुद के भर्ती हुए होते हैं, तो वो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन होने नहीं देते। ये मेरा एक सबसे बड़ा सिंपल सा एक पॉइंट है। किसी सियासतदान के क्रेडिबल होने के लिए इतना काफ़ी होता है कि वो पर्सनली वो करप्ट नहीं है, पर्सनली उसने माल नहीं बनाया, जबकि हम पर्सनल लाइफ को उसके जानते ही कितना है। और इमरान खान अगर इक़्तिदार में दोबारा आता है, आपके ख्याल में 10 साल, 15 साल, 20 साल कितने अरसे में वो ये सब कुछ ठीक कर लेगा? जब ये बाहर होते हैं गवर्नमेंट से तो उस वक्त तो दावे करना बड़ा आसान होता है, जब आ जाते हैं तो कहते हैं जी हमारे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि हम जो है वो आते सारी इस निज़ाम को ख़राब, जो इतने अरसे से ख़राब चला आ रहा है, उसको चंद सालों में या चंद महीनों में ठीक कर दें। जब महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर होते हैं, ये तो खान साहब ने कंटेनर के ऊपर ही सबसे पहले नारा लगाया था ना, इन्होंने फिर रिपीट किया उसके दौर में, अब ये दोबारा चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। ये बस ये बातें तो ये हर सियासतदान ऐसी है, जो भी आता है वो बड़े बड़े दावे करके आता है, बाद में कहता है जी हम कोई रातों रात तो नहीं इसको ठीक कर सकते। एक दूसरे की बातें जो हैं वो दूसरे को याद कराते रहते हैं। ये तो सारी चीज़ें कॉमन है इनमें सियासतदानों में। कुर्सी की प्यास तो सबको ही है, ये खान साहब भी ऐसे ही हैं, शहबाज, नवाज शरीफ, जरदारी, जितने भी हैं सारे, उनको सबको ही कुर्सी की प्यास है। कोई आगे अगर ये कहता है कि जी मैं इसलिए मुझे लाओ कि मैं सारा कुछ ठीक कर दूंगा, तो उसके बाद तो कोई टाइम फ्रेम है ही नहीं, ला के बस बिठा दो इनको और फिर भूल जाओ। इनके पास 5 साल का तो कोई प्रोग्राम ही नहीं होता। ये तो कहते हैं जी सारी ज़िंदगी बस हमें बिठाए रखो और हम आपको जो है वो लॉलीपॉप देते रहें और हमारा जो है वो गुजर बसर इसी तरह से जो है वो होता रहे। बिल्कुल, आप इस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो गवर्नमेंट से बाहर हों तो ये स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट में आके जी हम किस तरह कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बस इस बात पे मेरा दिल जो है ना बड़ा मुतमईन सा हो जाता है जब दुश्मन के आगे कोई ललकारता है ना, सिर्फ मेरे लिए, यूएन यूनाइटेड नेशन के आगे जो है मेरे लिए कोई भी खड़ा होता है और मेरी हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए कोई खड़ा होता है, जब कोई मेरे लिए, मेरी खुददारी के लिए जब कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड वी विल फाइट, और बड़ी दिल में पेन होती है व्हेन समवन इंसल्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देयर इज सम पेन इन द हार्ट ऑफ मुस्लिम्स, और वो पेन जो है वो किसी फिजिकल पेन से बहुत ज्यादा है। ये स्टेटमेंट्स कुछ दिल की जो है ना अपनाइयत की बात है, यूनाइटेड नेशंस, द होल वर्ल्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू, मुझे फीलिंग बड़ी अच्छी आती है। आपने जो बात की है ना कि कोई भी, तो यहाँ पे बात कोई भी की नहीं है। अगर आप गौर करें ना तो ये जो नारे जो खान साहब ने जो दिए हैं हमें खुददारी के वगैरह वगैरह, ये सिर्फ इसी के मुंह से अच्छे लगते हैं। मैंने जैसे आपको पहले इस बारे में मैं बता चुका हूँ कि उनके अंदर यही खूबी है। ये अगर नारा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी या कोई मौलाना या कोई भी दूसरा पॉलिटिशियन ये नारा लगाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कभी भी नहीं उसके साथ खड़े होंगे, आपको कभी फख्र महसूस नहीं होगा कि आपके लिए उसने इतनी बड़ी बात की है, आपके लिए वो दुनिया से लड़ता है, आपके लिए उसने फलां जो है वो स्टैंड ले लिया। ये किसी और के मुंह से आपको अच्छा नहीं लगेगी। ये वही चीज़ है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि खान साहब इसी के माहिर हैं और ये प्रैक्टिकली वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे ये सारे सियासतदान हैं। ये प्रैक्टिकली वही काम भी करेंगे इनको हराने के लिए, झूठ भी बोलेंगे, मकारी भी करेंगे, मुनाफकत भी करेंगे, यू टर्न भी लेंगे, और जब इनको पता चलेगा ना कि एस्टेब्लिशमेंट आपको इस शर्त पे आने दे रही है कि आप अपना बयानिया एस्टेब्लिशमेंट या फौज के बारे में ठीक करें, तो बयानिया भी इसका जो है वो तब्दील हो जाएगा। मतलब ये अपने नैरेटिव को किसी भी वक्त किसी भी तरफ जो है वो मोड़ सकता है और ये इसको बुरा भी नहीं समझता। ये कहता है कि जी वो बंदा ही वो सही नहीं है जो यू टर्न नहीं लेता। तो इनके लिए एक म्यार अपना ही है, अपना सेट किया हुआ म्यार है। ये लोगों को इनकी सिर्फ जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो उसकी वजह से लोग इसको पसंद भी करते हैं, इसके जलसों में भी आते हैं, वोट देते हैं या नहीं देते ये एक अलग इशू है। तो अब इसका जो है वो खुलासा यही निकलता है कि खान साहब जो है वो हर वो काम करेंगे कुर्सी हासिल करने के लिए जो दूसरे पॉलिटिशियन कर रहे हैं, उनका मुकाबला करने के लिए उसी तरह से ही वो रिएक्ट करेंगे और उसी तरह का इनका बिहेव होगा, उसी तरह की जो है ये टैक्टिक्स जो है अपनाएंगे जिस तरह ये दूसरे लोग जो है वो अपना रहे हैं। मुनाफकत है, जिस तरह भी जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सारी वो करेंगे।